पुलिस वालों से भी बात हुई है, वो कह रहे जी लड़के का हमारे पास फ़ोन आया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे को मारपीट कर रहे हैं, मैं इतनी मारपीट सहन नहीं कर सकता, जिसके कारण मुझे सुसाइड करने की नौबत आ गई। वो बोल रहे भी आपका बेटे को बोला था भी घर पे रहना, वो कैसे ड्यूटी चला गया। भाई ड्यूटी है, ड्यूटी कैसे जवाब दे सकता। आप देखना, आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो जब वहाँ सवाल किया गया कि कल कौन कौन से मुलाजिम हैं जो वहाँ गए, उनके नाम बता दीजिए, तो वो नाम बताने में भी झिझक रहे थे। तो मुलाजिम आपके गए थे, एक तो उसमें से नाम आ गया चरण सिंह, दूसरे मुलाजिम कौन थे? जो हमारी लेडी एएसआई थी एक, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। का क्या नाम है? बलजिंदर कौर है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने अंबाला पुलिस को किया फोन, कहा जान दे रहा हूं। पुलिसकर्मी ने पिता को फोन कर कहा तुम्हारा बेटा जान दे रहा है, बचा लो। जब तक पिता बेटे तक पहुंचा, हो चुकी थी काफी देर, रुक चुकी थी युवक की सांसें। प्रॉब्लम तो यही थी जी, पुलिस वाले टॉर्चर करते ਸੀ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੀ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੀ? ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੀ, ਪਿਲੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, 2 ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਲੇਡੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ? 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, 10 ਰੱਖ ਲਓ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ 12 ਵਜੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਦਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, 4 ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੀ ਲਿਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਣਦ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਿਓਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 12 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਬੇਟੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਈ ਕੱਲ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ, ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਥਾਣੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਟਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਰਪ ਪਰ? ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਮੁਝੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲੈ ਗਏ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਥਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਈ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ? ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ, ਚੌਥਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦਲੇਰ, ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੋਨੂ, ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜੀ। 5-6 ਬੰਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਟੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ 6-7, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਗੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिन्हें कॉल की है? आपने कल रात एक व्यक्ति को फ़ोन किया है और आपने बताया कि उसका जो बेटा है वो कहीं सुसाइड तो नहीं कर रहा है, जाकर देखें। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह को आपने कल फ़ोन किया है। हेलो, फ़ोन देखिए, इस वक्त उसने फ़ोन काट दिया है। ये जानते हुए आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसनू पता था ही सर, इसने फोन कट्टिया, इन्नू सारी कहानी का पता है, मिली भुगत है इन्हां दी पुलिस वाले। चलिए हम एक बार और दोबारा से फोन कर रहे हैं। हाँ ठीक जी है, सर। ले जाओ। हेलो हेलो, ये पुलिस वाले दी कॉल आई है ना को 12 पुलिस वाले का नाम पता है आपको? सर नाम नहीं पता, पर लेकिन 12:15 ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਲ, ਉੱਪਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਐਨਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। संजू साहब, जीरकपुर के प्रभात रोड में एक युवक ने आत्महत्या करी है कल रात, दिनांक 19 तारीख 12 बजे रात के करीब, और उन्होंने आरोप लगाया है कि इस शहर के रहने वाले लोगों ने प्रताड़ित किया और कई लोगों के नाम उन्होंने शिकायत भी, जिस लड़के ने आत्महत्या करी है उसके पिता ने शिकायत दे रखी है।
और पहले भी हमें जानकारी मिली है कि जिस लड़के ने आत्महत्या की है उसके खिलाफ इसी थाने में FIR दर्ज थी। आप इस मामले में क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जो आपने बात कही जीरकपुर में जो लड़के ने सुसाइड किया है वो मेरे संज्ञान में है मामला। उस लड़के के खिलाफ और लड़के के फादर, भाई, उनकी भाभी और जो मृतक जसपाल है उनके बहन, उनके खिलाफ यहाँ पे एक 72 नंबर FIR दर्ज है, इसी साल की है, दहेज की 498A की। तो उसके अंतर्गत जसपाल जो था वो कोर्ट से ज़मानत पे था और जो चारों आदमी थे वो अभी इस मुकदमे में पेंडिंग थे। जिसके बारे में मुकदमा पेंडिंग था तो अफसरों से बात करके भाई सर इसके बारे में क्या आगे स्टेप है इनको गिरफ्तार करना, तो सर ने ये बताया गया था, अधिकारियों की तरफ से ये आदेश थे भी स्पेसिफिक जो FIR के अंदर जो एलिगेशन लगे हुए हैं उनके बारे में जांच करने के लिए आप IO को वहाँ पे भेजें और उनकी वेरीफाई करके लाए आसपास के पड़ोसियों से भाई ये एलिगेशन ठीक है या गलत है, उसके बाद ही इस मुकदमे में गिरफ्तारी बढ़ती है। तो साहब आरोप ये भी है कि वहाँ जो पुलिसकर्मी गए थे, आपकी जानकारी में है जो बात, वहाँ जो पुलिसकर्मी गए थे उनके पिता ने, मृतक के पिता ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मचारियों ने मुझे डराया, धमकाया, मेरे बेटे को जबरन थाने बुलाने की धमकी दी, उसके बाद ही मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वो उन्होंने किस हिसाब से एलिगेशन लगाए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। जसपाल के जो मृतक के फादर हैं उनके बारे में मैं ये कोई बात नहीं कह पाऊँगा उन्होंने ये एलिगेशन क्यों लगाया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वहाँ के जो पड़ोसी थे उनसे भी मेरी बात हुई है। एक अशोक कुमार नाम के आदमी थे, उन्होंने भी ये बताया भाई हमने तो यही बताया था भाई इनकी दहेज को लेके ऐसी कोई बात नहीं होती थी, बाकी आदमियों का कोई रोल नहीं है इसमें, और सिर्फ इसमें जो जसपाल ही गिरफ्तार हो चुका था और वो कोर्ट से जमानत पे था। SHO साहब, आपके एक मुलाजिम हैं, चरण सिंह नाम के मुलाजिम हैं, उन्होंने जो मृतक है उसके आत्महत्या करने से केवल चंद मिनट ही पहले उसके पिता को फ़ोन किया था कि आपका बेटा सुसाइड करने वाला है। ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पहले चरण कॉल डिटेल है, वो आपके पास कॉल डिटेल है तो आप दिखा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है सबसे पहले उसको कैसे पता लगेगा, उसके पास तो पहले फ़ोन किया है मृतक ने, जसपाल ने फ़ोन किया है चरण सिंह के पास भाई मेरे को मेरे माँ बाप मेरे परिवार वालों ने मेरे को मारा है और मैं सुसाइड करूँगा, मैं तो मरूँगा, जिसके बारे में तुरंत कार्रवाई करते हुए चरण सिंह ने उसके फादर को फ़ोन किया भाई आपका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या बात होगी आप देखो एक बार। 12 बजे उसका फ़ोन आया रात ठीक है 12 बजे कितों जी पंजोखरा साहब से पंजोखरा साहब उन्होंने कहते फोन करा था नहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। अच्छा जी ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪੜੇ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ 2 ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ। और मुलाजिम का क्या नाम सीगा मुलाजिम का क्या नाम सीगा सीगा मुलाजिम था ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ देखो एक बार उसके जस्ट थोड़ी ही देर के बाद दोबारा फिर फ़ोन किया भाई क्या रहा क्या नहीं रहा आप इस बारे में बताओ। SHO साहब, उसके नज़दीक तो जीरकपुर थाना पड़ता है, तो जीरकपुर थाने के मुलाजिम को फ़ोन करता, वो करीब 30 किलोमीटर दूर इस शहर के पुलिस मुलाजिम को फ़ोन करता, बात नहीं समझ। आप बात समझने वाली ये है पुलिस पहले पहुंचेगी या उसके परिवार के आदमी पहुंचेंगे, क्योंकि साथ में पहले उनके माँ बाप है उनके साथ है, पुलिस को आने में समय लग सकता है लेकिन माँ बाप उसके साथ ही रहते हैं दरवाज़ा तोड़ के, और वो उनको बता भी सकते थे। कहने का मतलब ये है कि वो जीरकपुर में बैठे हैं, जीरकपुर थाना उनके बिल्कुल पास है, जीरकपुर थाना छोड़ के उन्होंने आपको कॉल क्यों किया? पुलिस स्टेशन जीरकपुर भी कॉल कर सकते थे। किसने? जसपाल ने सुसाइड करने से पहले वो पुलिस स्टेशन जीरकपुर भी कॉल कर सकते थे अगर उनको मदद चाहिए थी। तो वो तो देखो अब परमात्मा ने वो तो जा चुके हैं, इसके बारे में तो वही बता सकते थे भाई उन्होंने चरण सिंह को क्यों फ़ोन किया, इस बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन पुलिस ने पहले उनके फादर को फ़ोन किया, दोबारा फिर किया, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में बताया, जिस बारे में जो यहाँ के ड्यूटी अफसर थे जो थाना पंजोखरा ड्यूटी अफसर है उन्होंने भी थाने में बात की है जी ऐसे ऐसे बात होगी, एक बार आप जाओ आप देखो। जो मुलाजिम आपके गए थे एक तो उसमें से नाम आ गया चरण सिंह, दूसरे मुलाजिम कौन थे? जो हमारी लेडी ASI थी एक जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनका क्या नाम है? बलजिंदर कौर है। बलजिंदर कौर। जो चरण सिंह है उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं आप? मैं देख के बता सकता हूँ।
ताकि उनकी डिटेल देखी जाए कि डिटेल तो पुलिस अपने आप ले लेगी, जीरकपुर की भी ले लेगी, वो सभी चीज़ ऑन रिकॉर्ड होगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको बताई गई हो और हमारे को ना पता हो। वो सारी चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सामने आ जाएगा, CDR ली जाएंगी। SHO साहब, जब लड़के पर FIR दर्ज हुई, लड़का जेल भी जा चुका, जमानत भी करा चुका है, तब सुसाइड नहीं किया, कल ही आपकी पुलिस जाती है और कल ही लड़का सुसाइड करता है। जी तो एक इस बारे में तो क्या ही बोला जा सकता है, क्योंकि ये तो एक सिंपल वेरिफिकेशन थी पुलिस की। जो और आरोपी थे उनके बारे में एक सिंपल वेरिफिकेशन थी, भाई उनका कोई रोल है या नहीं है। इस बारे में वो पहले से तंग आया हुआ है या क्या बात है, इसके बारे में तो उसको परिवार वाले ही बता सकते हैं, भाई उसने ऐसा क्यों किया। पर जो पिता का आरोप है कि आपके पुलिस मुलाजिमों ने धमकाया, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला गया है। अभी उन्होंने एक अपनी कंप्लेंट जो है जीरकपुर पुलिस स्टेशन में लिखवाई है। आज अगर उस पर FIR होती है और आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो क्या आप आरोपियों को जो जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं अरेस्ट करेंगे? अगर जो FIR दर्ज होती है और मेरे पास उधर से ये मैसेज आता है भाई जो जसपाल ने ऐसे ऐसे करके सुसाइड किया था, उसमें इन आदमियों का रोल है, तो उसके बारे में हम अगर जो मेरे थाना क्षेत्र के कोई जैसे लड़की के परिवार पक्ष वालों के खिलाफ वो एलिगेशन लगा रहे हैं अब तक, जैसे कि मेरे को पता लगा है, अगर उनके आरोपों पे आपके पुलिस मुलाजिम के ऊपर भी FIR होती है तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? वो जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर जो उनका कोई पार्ट है, उनका कोई रोल है, तो उनको भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। यही बात उनके लिए है जो यहाँ लड़की पक्ष वाले हैं, भाई इसमें वो उनका क्या रोल है क्या नहीं है, उसको डिटेन करने के लिए मैं वहाँ पे खुद स्वयं जाऊँगा, उनको डिटेन किया जाएगा और जीरकपुर पुलिस को बताया जाएगा भाई इनको डिटेन कर लिया, आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। बीती रात जीरकपुर में एक 34 साल का युवक आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का कारण जो है उसके पिता ने ये बताया है कि हरियाणा में पड़ते एक थाने के पुलिस मुलाजिम उसके पिता को डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद जो युवक है वो आत्महत्या कर लेता है। इस वक्त हम उस पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़े हैं। पंजोखरा अम्बाला थाना पड़ता है और इस थाने में युवक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज था, जिसमें वो गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी काटी, लेकिन जमानत पर वो रिहा था। उसके बाद कल इसी थाने की पुलिस जो है जीरकपुर जाती है, युवक से पूछताछ करने के लिए उसके पिता से मुलाकात करती है और जिस तरह से युवक के पिता जो है वो आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने मुझे डराया, धमकाया, और उसके बाद जब उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो युवक ने डर कर आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। इस वक्त मेरे साथ कई महिलाएं जो हैं, समाज सेवी महिलाएं हैं, वो भी थाने के अंदर ही मौजूद थी। उन्होंने बातचीत करी, इस मामले को जीरकपुर से लेकर अम्बाला तक पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप समाज सेवी होने के नाते यहाँ पहुंचे हैं, एक युवक ने आत्महत्या करी है, आपको पूरा मामला पता है, हमें जानकारी दीजिए। सर, पूरा मामला ये है कि जो लड़के के ससुराल वाले हैं वो 4 महीने से उसको टॉर्चर कर रहे थे, कभी कहीं कंप्लेंट, कभी कहीं कंप्लेंट। उसके बाद उसकी का नाम क्या था? जसपाल। जसपाल, हाँ जी। उसके बाद उसकी जमानत भी हुई है, इसी थाने वालों ने, मतलब कि जो कंप्लेंट थी जमानत हुई है, 12 तारीख को हुई शायद। उसके बाद कल पुलिस वाले तहकीकात करने गए थे उनके घर पे कि जो 5 मतलब कि घर के मेंबरों के ऊपर कंप्लेंट दी गई है कि ये सच है कि इस कंप्लेंट में क्या सच्चाई है। वो सच्चाई जानने के लिए गए थे, तो उसके बाद रात को मतलब कि वो लड़का सुसाइड कर लेता है। तो उसके आगे का मामला पुलिस वाले ही उनको फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम्हारा फादर को फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम्हारा अपने बेटे को देखो कि कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया। हम इस अपने व्यूवर्स को ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि युवक को आत्महत्या करने से चंद मिनट पहले, या कह सकते हैं चंद सेकंड
पहले ही युवक के पिता को एक फ़ोन आता है। इसी थाने के मुलाजिम है, इसी पंजोखरा अंबाला थाने पुलिस चरण सिंह नाम का मुलाजिम जो है युवक के पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि आपका बेटा आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये मामला पूरा क्या है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। क्या बातचीत हुई है, क्या मीडिया से बातचीत हुई है, पूरा मामला जानने के लिए आप ये वीडियो बने रहिए हमारे साथ। जी मैडम बताइए। अभी जो बातचीत हुई है पुलिस वालों से भी बात हुई है, वो कह रहे जी लड़के का हमारे पास फ़ोन आया था कि मेरे ससुराल वाले मेरे को मारपीट कर रहे हैं, मैं इतनी मारपीट सहन नहीं कर सकता, जिसके कारण मुझे सुसाइड करने की नौबत आ गई। उसके आगे का मामला यह है कि वो उसके ऑफिस में लड़की का चाचा मारपीट करके आया, ऑफिस के बंदों के सामने ये मामला हुआ है। उसके बाद उसने घर आने के बाद उसको पता नहीं कितना डिप्रेशन में आके उसको यहाँ तक कि अपने आप को सुसाइड करना पड़ा। जी क्या कल ही उसका चाचा जो है उस लड़के के ऑफिस में जाकर मारपीट करी है उसने? हाँ जी। और कल पुलिस मुलाजिम भी पहुंचे थे यहाँ से जीरकपुर। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि उसके चाचा और पुलिस की मिली भगत है इसमें? यस। देखिए जो समाज सेवी की महिला है उनका भी कहना है कि इसी थाने के पुलिस मुलाजिमों की मिली भगत भी है। और सबसे बड़ा जो बात सामने आई है, पुलिस मुलाजिम को कैसे पता लगा, या कोई आसमान से कोई टेलीपैथिक हुई थी पुलिस मुलाजिमों को कि क्या वो युवक आत्महत्या करने वाला है। जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, यहाँ के पुलिस मुलाजिम जो हैं चरण सिंह, उनको किस तरह से पता लगता है कि जो जसवंत है वो आत्महत्या करने वाला है, और उसके पिता को आत्महत्या से केवल चंद मिनट पहले ही फ़ोन करते हैं। लेकिन जब तक उसके पिता अपने बेटे के पास पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। उसके पिता को लगातार चरण सिंह फ़ोन करके बताते हैं कि आपका बेटा आत्महत्या करने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो चरण सिंह है उन्हें पता था कि जो युवक है उसे हमने सताया है, डराया है, या फिर जो इसका चाचा था जिन्होंने मारपीट करी उन्होंने पुलिस मुलाजिमों को ये बताया कि वो आत्महत्या करने वाला है। लेकिन पुलिस की, इस थाने की पुलिस की जो मौजूदगी है वो संदिग्ध नज़र आ रही है। इस वक्त भी हमारी एसएचओ से भी बात हुई है, वो भी अपने मुलाजिम को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पूरी तरह से पक्षपात करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जीरकपुर थाना को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने इसका रिस्पांस दिया जब हमारे पत्रकार ने जीरकपुर थाना फ़ोन किया और ये पता करने की कोशिश की कि क्या इस तरह की कोई कॉल इस थाने से आई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात से इनकार कर दिया कि इस मामले में किसी भी पुलिस मुलाजिम की कोई कॉल आई थी। वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। जब मीडिया कर्मियों ने चरण सिंह से बातचीत करने की कोशिश करी तो उसने फ़ोन उस वक्त काट दिया। जैसे ही उसे पता लगा कि मीडिया कर्मी हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके तुरंत बाद ही उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, और इस वक्त भी उस मुलाजिम का, जो इसी थाने का मुलाजिम है, उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है। जब हमने ये मामला एसएचओ के सामने रखा तो एसएचओ ने ये बात कही है कि मुलाजिम जो है वो डर गया। आखिर किस बात को लेकर वो डरा, क्या कारण था कि वो डरा, क्या उसके दिल में थी, ये तफ्तीश का मामला है। ये भी मामला हम आपको दिखाएंगे, पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, पूरा मामला हम आपको बताएंगे। एसएचओ से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे मुलाजिम ने जब फ़ोन किया था उन्होंने यही बात कही कि पहले जसवंत की कॉल आई थी। जी उन्होंने कहा हाँ जी, कि पहले जसवंत की कॉल आई थी कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। हाँ जी। क्या यहाँ का मुलाजिम पहले पहुँचता जीरकपुर, या जीरकपुर थाने का मुलाजिम जो है वो पहुँचता जीरकपुर? जीरकपुर वाले पहले पहुंचते, इन्होंने पहले कॉल कर दी। तो इन्होंने कॉल क्यों इसी थाने को क्यों करी? अगर उसको पुलिस मुलाजिम को ही फ़ोन करना था तो जीरकपुर थाने करता वो फ़ोन कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। हाँ जी। उसने यहाँ क्यों फ़ोन किया? क्या ये पुलिस मुलाजिम 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर उसको बचा सकते थे? नहीं, उसे थाने फ़ोन करना चाहिए था, जीरकपुर थाने फ़ोन करना चाहिए था। यहाँ संदिग्ध जो है वो जो एसएचओ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, जो उनके मुलाजिम हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। जब उन्होंने हमसे बातचीत करी, ऑफ द कैमरा बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुलाजिम को 1 बजे कॉल आई थी, जबकि उनके पिता का कहना है कि उन्हें 12 बजने से कुछ मिनट पहले कॉल आई थी। यहाँ सोचने वाली बात है कि जो एसएचओ हैं उनके टाइमलाइन में और जो युवक ने आत्महत्या करी है उसके पिता का जो बयान है उसके टाइमलाइन में दोनों अलग अलग मामले नज़र आ रहे हैं। इसमें संदिग्ध जो हैं वो इसी थाने के पुलिस मुलाजिम नज़र आ रहे हैं। ये शिकायत जो है
पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ भी हुई है जीरकपुर थाने में। जीरकपुर थाने के जो पुलिस मुलाजिम है इस मामले में तफ्तीश करेंगे, उसके बाद जानकारी देंगे कि क्या इनको कॉल आई थी, क्या चरण सिंह को कॉल आई थी इस मामले में, या फिर चरण सिंह ने खुद अपने फ़ोन से उनके पिता को फ़ोन किया था। जो युवक जिसने आत्महत्या करी है उसके रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह है जी। क्या लगते हो आप जिसने फुफड़ लगता किया है उसके? क्या लगते हो? फुफड़ लगता है जी। फुफड़ लगते हो आप। उस समय आपको कब जानकारी मिली कि आप? मुझे रात 2:30 बजे जानकारी मिली। 2:30 बजे पता लगा? हाँ जी। तो आपको किसने, रिश्तेदारों ने जानकारी दी? नहीं मेरी वाइफ ने। मौके पर? मेरी वाइफ ने। मौके पर आप पहुंचे थे फिर? नहीं मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर नहीं पहुंच पाए थे? सुबह 5 बजे पहुंचा। सुबह 5 बजे आप पहुंचे थे। तो क्या उस समय जो पुलिस है वो शव को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी? नहीं मैं हॉस्पिटल गया था जी, सीधा वहाँ से। हॉस्पिटल से मैं देखा वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं अपने जिसने सुसाइड किया है उसका नेचर कैसा था ये बता दीजिए। नहीं उसका नेचर बिल्कुल क्रिमिनल टाइप का था जिस तरह से लड़की वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है? आपको क्या लगता है कि दहेज? नहीं कोई और नहीं था। बहुत साऊ था, बहुत साऊ लड़का था जी। वहाँ क्या काम करता था वो लड़का? वो अपना वाटर सप्लाई में था जी, सरकारी मुलाजिम था। आपको लगता है कि इस तरह जिस तरह से उसने आत्महत्या करी है, क्या वो डिप्रेशन में था, या जिस तरह से जो समाज सेवी महिला है वो बता रही है कि उसके चाचा ने उसके दफ्तर में जाके मारपीट करी है? हाँ जी। उससे डिप्रेशन में जाके हाँ जी उसी से ज़्यादा वो होया ये जाती है उसमें। आपको क्या लगता है जिस तरह से पुलिस मुलाजिम बता रहे हैं कि हम जो उनके पिता हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पुलिस मुलाजिम ने फ़ोन किया था, आपको संदिग्ध नज़र आ रहे हैं कि पुलिस कर्मियों की मिलीभगत है इसमें? नहीं है इसी थाने की पुलिस कर्मियों की मिलीभगत है? आज जीरकपुर थाने में आपने शिकायत दर्ज करवाई है, जो युवक है उनके पिता ने शिकायत दर्ज करवाई। क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी इस मामले में? कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ चाहिए जी मेरे को। क्या लगता है आपको जीरकपुर थाना जो है, जीरकपुर थाने के जो पुलिस मुलाजिम है वो इंसाफ दिला पाएंगे आपको? दिलाना पड़ेगा जी, उनको दिलाएंगे क्यों नहीं, दिला देंगे वो। हाँ जी। देखिए यहाँ साफ तौर पे कहना है जिस युवक ने आत्महत्या करी है उसने उनको जो जीरकपुर थाने के पुलिस मुलाजिम है वो इंसाफ दिला पाएगी। हाँ महिलाएं हम आपको खड़ी दिखा रहे हैं सभी समाज सेवा से। कौन से एनजीओ से? एंटी करप्शन और एंटी हाँ जी। आपको कब जानकारी मिली इस बात? आज मिली थी सुबह 11 बजे। 11 बजे? हाँ जी। तो आप लोग जीरकपुर से यहाँ तक पहुँच गए जानने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए युवक के पिता को, क्योंकि युवक तो अब रहा नहीं है। हाँ जी वो तो रहा नहीं है, अब तो इंसाफ इनको मिलना चाहिए ना। इंसाफ क्या लगता है जीरकपुर थाना जो है वो दिला पाएगी इंसाफ? इंसाफ तो देना पड़ेगा उनको जी, दिला पाएगी। हाँ जी। जिस तरह से इन पुलिस मुलाजिमों ने मिली भगत करके एक युवक की जान ले ली है, या फिर इनकी जो कारगुजारी थी उस तरह से जान चली गई है। मिली भगत तो इन्हीं की है, सारी पुलिस वालों की है। हाँ जी इनकी है सारी, क्योंकि ये साफ ही पता लग रहा है कि इनकी मिली भगत है। दो जो मुलाजिम है इनके, उनके तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गए उनके, तो क्या कारण है फोन? और दूसरा रात में बोल रहे कि इनके ट्रांसफ़र भी हो गया मैडम का। कैसे हो गया? रात में ही हो गया ट्रांसफ़र मैडम का। रात में ट्रांसफर हो गया मैडम? हाँ। जो मुलाजिम यहाँ से गई थी हाँ जी, हाँ जी ये बोल रहे हैं। जो मुलाजिम यहाँ से जीरकपुर थाने तफ्तीश के लिए गई थी, लड़के से पूछताछ करने के लिए गई थी, रातों रात उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और आप इसी वीडियो में एसएचओ साहब से भी उस मुलाजिम का नाम सुन पाएंगे। मेरे साथ इस समय सेवक सभा जीरकपुर के एनजीओ से संदीप जी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये भी पहुँचे हैं इसी मामले में। संदीप जी, आप शुरू से लेकर अंत तक इस मामले में यहाँ हैं, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है ये? देखिए सबसे पहले तो बहुत एक अफसोस वाली बात है कि एक नौजवान ने आत्महत्या करी है, और बहुत बड़ा कदम होता है आत्महत्या करना। एक सुई भी चुभती है बंदे को तो बहुत फील होता है, और अपनी जान देना तो उसके पीछे हम समझ सकते हैं, करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश होती है संदीप जी, और समझ सकते हैं कि उसके पीछे कितना प्रेशर चल रहा होगा, और प्रेशर किन लोगों का, ये आज सारी हकीकत सामने आ गई। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है उसके ससुराल ने, और जो 5-6 नाम बताए गए, हर एक का बराबर रोल बनता है। 5-6 लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, और जो बची हुई कमी थी
वो पुलिस स्टेशन पंजोखरा ने पूरी कर दी। जैसे कि उनके फादर साहब ने स्टेटमेंट लिखवाई है कि इनके मुलाजिम गए और इन्होंने टॉर्चर किया और डराया धमकाया और डरते हुए हमारे बच्चे ने जो सुसाइड कर लिया। देखिए, समाज सेवियों ने एक बात बताई है। मैडम, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। जो कल महिला पुलिस मुलाजिम गई थी, आपको किसने जानकारी दी कि उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया? क्योंकि कल वो जीरकपुर में थी और रातों रात किस बात को लेकर ट्रांसफर कर दिया गया है? संदीप जी, क्या लगता है आपको, ये चल क्या रहा है? देखो, क्या मामला है? इसी थाने की पुलिस मुलाजिम कल जीरकपुर जाती है और रातों रात उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो, आज अभी आपके साथ ही हम लोग SHO साहब से मिले तो उनकी बातों से ही कहीं ना कहीं साजिश की एक बदबू जरूर आई है। वो SHO साहब से भी आ रही है और SHO साहब को पूरा मामला, जब हमने सुबह SHO साहब से बातचीत करी तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन जब हम यहाँ थाने पहुँचे तो SHO साहब मामले की तफ्तीश कर रहे थे। जो महिलाएं आई हैं, ठीक है, उनसे तफ्तीश कर रहे थे कि मामला क्या है, जबकि हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। हर एक बात उन्होंने हमें जानकारी दी है। आप देखना, आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो जब वहाँ सवाल किया गया कि कल कौन कौन से मुलाजिम हैं जो वहाँ गए, उनके नाम बता दीजिए, तो वो नाम बताने में भी झिझक रहे थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि यहाँ से मिलेगा। और अब जो बॉल है वो जीरकपुर पुलिस की पारी में गई है और ये सारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, हम सब लोग मिलके जीरकपुर पुलिस जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस मामले की तह तक जाएं और जो जो दोषी पाया जाए, चाहे इनके पुलिस मुलाजिम भी दोषी हों, तो सब पे FIR बनती है। एक युवक की जान चली जाती है, 35 साल का युवक अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। पंजोखरा अंबाला पुलिस स्टेशन है, इनके पुलिस मुलाजिमों की मिली भगत है, लेकिन इंसाफ की गुहार जो है वो जीरकपुर पुलिस मुलाजिमों से लगाई गई है। शिकायत दी गई है जीरकपुर थाने में कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस मामले में देखना हमें यह है कब तक इंसाफ मिलता है।